بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج یاسین کی تخم ریزی کے بارے میں چند چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں جناب لیاقت علی خان راجہ نے جناب راجہ جہانزیب سے اور نمبردار مزگی سے انٹرویو لیا تھا۔ گو کہ انہوں نے اپنے نالج کے مطابق بات تو کیا، لیکن تاریخی لحاظ سے میں اس میں کچھ تصحیح کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ جیسا جب ہم تخم ریزی کرتے ہیں تھم و بو یا میتری بی یا گھروں میں جو ہم بیگنی کیا بویم کرتے ہیں، تخم ریزی کرتے ہیں، اس میں ایک گانا گایا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے تیلی تتھم بوینمی ایش تھم بوایدو سمی ایش ببولیگا سے غندش حشنال نے اسکلتا دوسمو۔ اس طرح کا یہ ایک گانا یا زرمیہ یا جو ہے ایک اس کو ہم گانا ہی کہہ سکتے ہیں یا کوئی زرمیہ کہہ سکتے ہیں، گا کر اس کو جناب ایک آدمی وہ حیماز کرتا ہے جس کا افتتاح ہوتا ہے حیماز سے۔ تو اس نام سے ظاہر ہے یہ کہ تیلی تیتھم اور ایشتھم کے زمانے سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں راجے جو کہ قبل مسیح میں ان کی حکومتیں تھیں، ایک کا قلعہ تھا ققہر میں اور دوسرے کا تھا بلوشنگ نوح میں، جن کے آج صرف پتھروں کے نشانات باقی ہیں۔ میرے ریسرچ کے مطابق یاسین میں 14 یا 15 قلعے تھے مختلف۔ ہو سکتا ہے اس وقت کے زمانے میں کے لحاظ سے قبائلیوں کے اپنے اپنے قلعے ہوں اور وہ اپنے قبائلیوں پہ حکومت کرتے ہوں۔ بدقسمتی سے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان، جس میں گریٹ یاسین بھی شامل ہے، کا کوئی تاریخی پس منظر تحریری صورت میں ہمیں نہیں ملتا، لیکن بہت سے فارنرز کی کتابوں سے ہمیں کافی مواد ملتا ہے۔ وکیل شفیع کے کہنے کے مطابق تیلی تیتھم اور ایشتھم کی حکمرانی یا راجدھانی قبل مسیح میں تھا، اور ہو سکتا ہے دا گریٹ بروشال کے زمانے میں جو بروشاز کے بولنے والے لوگوں کی حکومت تھی، اور بروشاز کی راجدھانی کا میرے خیال میں یہ شاید آخری راجے تھے تیلی تیتھم اور ایشتھم۔ کہا جاتا ہے کہ تیلی تیتھم نے ایشتھم کی بیٹی ایش ببولیگاس کے لیے اپنے لیے رشتہ مانگنے کے لیے کچھ اپنے وزراء وغیرہ بھیجا۔ پہلے تیلی تیتھم نے انکار کیا، لیکن بعد ازاں جب اس نے اپنے وزراء اور اپنے اکابرین سے اس بات کا مشورہ لیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ نے غلط کیا ہے، وہ بھی راجہ ہے، اور اس زمانے میں قبائلی لڑائیاں وغیرہ ہوتی تھیں، تو شاید انہوں نے اس بات سے بھی خوف محسوس کیا ہو کہ بھائی اس کی وجہ سے لڑائیاں جنگیں نہ ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایشتھم نے تیلی تیتھم کو پیغام بھیجا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ رشتہ منظور ہے، لیکن راجوں کی تخم ریزی کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے تیلی تیتھم اور ایشتھم سے پہلے بھی یہ بات جو تھا یہ رواج رسم تھا کہ وہ میتری بیگنی کیا، جو ہے زمینداروں کی بیگنی کیا، بوپھاؤ یا تخم ریزی کا رسم و رواج تھا۔ لیکن اس وقت کہا جاتا ہے کہ تیلی تیتھم سے رہا نہیں گیا، جنوری کے مہینے میں اس نے تخم ریزی کا رسم ادا کیا۔ برف پڑی ہوئی تھی، کہتے ہیں اس وقت کے زمانے میں جو پاپوش یا کرکٹ یا کون جن کو ہم کہتے ہیں پہن کر شوقے کے اس پر اس نے کمر بند باندھ کر
जब जनवरी के महीने में तोहमे रेजी किया तो उस वक़्त ये गाना गाया गया कि तीली तिथमे बोयनिमी अयशथम बोगाया दूसमी अयश बुबुलिगा से गंदश हशनल यानी इस्किल से दियमू हरा जलमयागा गंदश का बुरिशुलिमी सेला जलमयागा फलशुलिमी। इस तरीके की उनके साथ शायद कोई बहुत बड़े कद के लोग भी आए थे, उनको तंजन शरोटुम हिरंदिनी यक बैक मुगल बरसिंग, इस तरीके से ये हेमाज का एक गाना ज़रमिया गाना है जो गाकर ये रस्म अदा किया जाता है। तो ये किसी शाराइस का या खुशवख्तिया का या कटोरे का या जो है रईस बेगल का या रईस का रिवाज नहीं है। दूसरी बात, मज़गी ने थमराई के बारे में कहा कि रईस राजा ने उसको कत्ल किया। नो, रईस राजा ने कत्ल नहीं किया बल्कि उसके अपने अवाम ने उसको कत्ल किया। कहा जाता है कि उसने जब लोगों को बहुत तंग किया और फिर ब्रोनी हमलावरों के खतरे से बचने के लिए उसने एक खंदक खोदा, बहुत बड़ा चह खोदा। खोदने के बाद अपने वज़रा से मशवरा किया कि क्या इस चह को, क्या इस खंदक को क्रॉस करके भी कोई मुझे मार डाल सकता है या कोई इसमें गिर गया तो बाहर निकल सकता है। तो उन वज़रा में से कोई एक बहुत चालाक वजीर था जिसने कहा कि नज़र आप खुद ही इसमें उतर कर देखें कि क्या होता है। तो वो जब उस खंदक में उतर गया तो उस खंदक के मवाद को या उसको जिस चीज़ से नीचे उतारा गया था पहले उस चीज़ को ऊपर खींच लिया गया। उन्होंने कहा कि आप कोशिश करें। वो जब ऊपर नहीं निकल सका तो उस मवाद को, जिसको हम तगा कहते हैं या शियाक कहते हैं, गारा से और मट्टी से दोबारा उसको ऊपर डालकर उसे जिंदा दफनाया गया। एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत ये कहा जाता है कि उसने लकड़ी के, यानी कि हम जोख कहते हैं उर्दू में, कांटे कहते हैं, कांटों का बहुत बड़ा स्टार लगाया था। उसके ऊपर निकल कर वो जो है नज़ारे किया करता था। एक दिन वो जब उसके ऊपर निकल गया और हवा बहुत तेज चल रही थी तो नीचे किसी मनचले ने आग लगा दी। और आपको पता है कि आग जब कांटों को लगाया जाता तो एकदम से आग पकड़ता है। उस आग के लपेट में आकर वो मर गया। ये चीज़ें मैंने नंबरदार बुलबुल खान, जो कि तकरीबन 120 साल की उम्र में वफात पा गए हैं, संधी में शमूने कौम का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का नंबरदार था, उसके ज़ुबानी सुना ये बातें। मैंने उसके ज़ुबानी ये चीज़ें सुनी और मैं बयान कर रहा हूँ। तो तोहमे रज़ी का जो हमारा हिस्ट्री है ये तीली तिथम और अयशथम के ज़माने से भी पहले से रिवाज था यासीन में। और उसमें ये जो ज़रमिया या रज़मिया जो गाना के हम लोगों ने शामिल किया है, ये वो तीली तिथम और अयशथम के दरमियान जो ससुर और दामाद का रिश्ता कायम होने के लिए थमबो या राजू की तोहमे रज़ी का शर्त रखा गया था। और उसने मार्च का भी जो है इंतज़ार किए बगैर जनवरी में जब ये रस्म अदा किया तो जनवरी के महीने को यासीन में थम्बकुस इसलिए कहा जाता है। लिहाजा इस बात की दुरुस्ती की जाए कि यासीन की तोहमे रज़ी का जो रस्म है ये तीली तिथम और अयशथम के ज़माना से भी बहुत पहले से कायम था। चूँकि यासीन में बिरोनी बहुत से हमला आवरों ने हुकूमत किया है, चाइनीज़ ने भी किया है, तिब्बतिन ने भी किया है, किर्गिज़ ने भी किया है। और बहरीखान जो है, बहरीखान को कहा जाता है कि अलमक के फ़ौज ने यानी चाइनीज़ ने बनाया था। इसी तरह बरकुल्ती में कोई एक किला था जिसे किर्गिज़ ने बनाया था, किर्गिज़ खान कहते हैं। इसी तरह यासीन में थमराई में था, खान बशयट था। और बरकुल्ती के जो प्लोग्रोन था उसमें भी बड़ोल थम का खान था। हुंदूर में एक खान के किले के खंडरात है, मुडूरी है, खान यट नाजबर है, डोर खान है। इसी तरीके से बुलुशुम का खान है, चुकुशुम का खान है, डोर खान है।
थुई में 2 जगहों में खान थे, किले थे। बरकुल्ती में कौम हिलबिचिंगे के घर के ऊपर है, जिसे कहा जाता है कि किर्गिज़ का खान था। ठीक है, तो थमराई का खान जो है, थमराई जिसे आज भी कहा जाता है, उस जगह में था। ये सारी चीज़ें बदकिस्मती से ख़त्म हो गई, इनके निशानात भी नहीं हैं। अब सिर्फ डोरखन के कुछ निशानात बाकी हैं। मैं इस वीडियो के ज़रिए जनाब जलालुद्दीन, जहांजेब साहब, सलाहुद्दीन और कर्नल नासिर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि अगर वो इस खान को भी खान कल्चर के ज़रिए इसको प्रिज़र्व करा कर इसको रखा जाए। इसी तरह मुडूरी का जो सुरंग है उसको भी अगर आवाम से मिलकर, वहाँ के लोगों से मिलकर, चिबीव से और चख्ताई के लोगों से बात करके उस सुरंग को ही अगर खुदा कर बहाल कराया जाए तो यासीन में टूरिज़म का एक बहुत बड़ा ज़रिया हो सकता है और ये हमारी तारीख़ की भी एक अच्छी वो होगी। तो ये थी चंद एक अल्फाज जो तोहमे रेज़ी के बारे में मैंने बयान किया, और अगर इसमें तामीरी तनकीद की जाएगी तो इसमें दुरुस्ती आ जाएगा। तनकीद बराए तनकीद से परहेज़ किया जाए। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।